Ma'am, just 1 second, let me go live. Sorry, apologize. Rohit, please give the cue very Just 1 minute, just 1 minute. Rohan, we are waiting. Yeah, my sir, please. Ma'am, we can begin. I can start. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can begin. So, respected Mamata ji and the Chief Minister, welcome and good afternoon to you all. We all seem to be getting used to this mode of communication. And who knows when we will be able to communicate, right? There are a number of important issues that are related to center-state relations. And since Parliament is expected to meet in less than 3 weeks, I think, I thought that we should have an interaction so that we can have a coordinated approach. GST compensation seems to be a big issue. Compensation being paid to states on time according to laws passed by Parliament is crucial, and I know it is not happening. Dues have accumulated, and the finances of all the states are badly affected. Now, GST, we all know, was enacted as an example of cooperative federalism. The GST regime came into existence because the states agreed to further their constitutional powers of taxation in the larger national interest and on the solemn promise of compulsory GST compensation for a period of 5 years. In the meeting of the Standing Committee of Finance on the 11th of August 2020, the Finance Secretary, Government of India, clearly stated that the central government is not in a position to pay the mandatory GST compensation of 14% for the current year. So this refusal to compensate the state is nothing short of betrayal on the part of the Modi government. Betrayal of state governments and of the people of India. So on the other hand, the central government continues to profiteer from unilateral taxes which are not shareable with states and they corner these revenues. On top of that, apart from the GST, which is a current issue, ordinances have been issued without consulting the states on agricultural market. I know that our Chief Minister from Punjab, Chief Minister Amrinder Singh, has already highlighted how these will destroy the NFT, the regime, and adversely impact on the PDS as well. There has been also a national outcry against the draft TRA notification 2020, which is deeply anti-democratic. Laws meant to protect the environment and therefore livelihoods and public health are being weakened. The auction of coal mines too has been objected already by some Chief Minister,
are being sold off. Here too, you all know that some state governments have expressed their opposition. 6 airports have been given into private hands, and the railways, that is the lifeline of the country, they are also being privatized. There are other announcements like the national education policy that should really worry us, because it is a setback. It is actually a setback for progressive, secular, and scientific value, and it actually displays, it reveals the insensitivity of what the states have been saying. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with unfairly. Now there are many more issues, and I'm sure you are much more aware of them than I am. So I think I will stop here and hand the meeting over to Mamataji. Sonali, thank you so much for calling this meeting, especially at this crisis time, and when our students, community especially, they are facing a lot. Even they are totally in their uncertainty, they have their mental agony, they do not know. Government already announced that JEE and NEET exam will start from 1st to 6th and 13th. But how they will give the examination, I do not know, because more than 25.50 lakh students are involved. Even more than 4,500 to the centers are already there. Rail is not working properly. Aviation also there are some problems. Transportation is also not effectively working because of this lockdown system and all this. Now, under this lockdown protocol, when like COVID, a pandemic is going on, then first in the month of April, UGC has sent a letter to the state government that they will defer this exam or they will take some other options. But again they sent another letter to change that decision, which will harm the students, especially the graduation, post-graduation. And now the JEE and the NEET, our students and youth, they are very much talented, they are really very brave, they are very bright, and I do not know how they will sit for exam. Yes, I appreciate that government can say that Supreme Court has given the verdict and that's why government is doing all these things. I have appealed Prime Minister, I have requested, I have sent so many letters, but I can show you that yes, I have sent this letter to Prime Minister because of this NEET, JEE and this exam, other exam, and I requested Prime Minister that if the government can review government can request the Supreme Court when students community are in a serious situation. Even some people are facing the depression also. It is a mental agony. Then Government of India can appeal Supreme Court, Honorable Court to review the appeal so that students community, they feel they are not been harassed or they are not been deprived or they are not going for the mental torture or depression, what is going on right now, whatever we are getting the information from the grassroots. And now that is the option is there. Even with the state governments, especially Punjab, Maharashtra, this Jharkhand, Puducherry, then we have the Rajasthan, and also we have the other state government also. Whoever will support, it depends on them, but whoever present is here today. We can also, if the law permits, we can discuss this matter with our senior advocates. There are so many important advocates they are always helping us, maybe Abhishek Singhvi or Kapil, there are so many.
There are so many important advocates in this country are there. So who are the especially who are experts in this field? We may discuss the matter with them. And Bengal is there. If Punjab Chief Minister can take initiative, Punjab, Maharashtra, Jharkhand, Puducherry, Rajasthan and others, then we can also jointly appeal. It may be that Supreme Court may say that we have already given the direction. But sometimes we have seen there are some precedent also that if the problem is there, if the situation is some sensitive, then of course they always give consideration to the people's voice, students' voice, because students and youth, they are the future, they are the asset of this country. So we also may appeal the Supreme Court. If central government feel not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government, this will be my request to all the state government, let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the time being unless the situation allows students to sit for exam. And more than 25.50 lakhs, it is not a joke. Even there is a system for online exam, but medical no. From where they will be coming, where they will be going, how they will be going. Even mentally also they are not prepared for this. Now all the educational institutions are closed. So at this situation, that will be my first appeal to all of you. I am thankful to Saniaji for convening this meeting today, because this is a very serious issue. I thought what we discussed about COVID, this is also an important issue. Education issue is a more important issue, and we stand by our students. We salute to our students and youth, and we are stand by our students. Whatever they require the help, we are willing to do it. This is number one. Every chief minister must come forward and we must work together. Number two, what Soniaji said, 100% I can assure you, yes, we are fighting the battle. Whatever they are saying nowadays, in the name of cooperative federalism, the state government is being bulldozed like anything. In every meeting, your chief ministers ask the other chief ministers, I raised my issue every time. Now state, where the money will be coming? Our tax, we are giving to the central government. They are collecting from state government. Earlier, there is a planning commission. States should have meet with the planning commission and they should have decided their policy. Now nobody is there. Now nobody is talking even. GST, of course, from my government, I can tell you, 4,100 crores, I have to get it within month of May, June, but I have not yet received. So how do we run the government? COVID, the pandemic is going on. And now we are not getting one single paisa. From how we will go for expenditure. We have to give for safe house free of cost, treatment free of cost, medicine free of cost, ventilator free of cost, nasal oxygen free of cost, even their ambulance free of cost. Everything we are giving free of cost. Even the migrant workers, they came. We gave their ticket, the expenditure. We are trying our best, madam. But the problem is that we are not getting anything. They are saying so many things. Sometimes finance minister said we are giving these thousands of crores, lakhs of crores, but where is the money? The same thing, they are repeating and repeating. Even we requested all the chief ministers who are present, they know that FRBM system, madam, there is a FRBM system of financial discipline. We said that when you allow, we said that Japan can use 20% for that purpose, FRBM. They are giving GST, the system. Now America also spending 10% GST for COVID. Now UK is also spending 20% GST for COVID. Now India, it is, I do not know, 1 or 2%. Even we said that, okay, if you give 5% also, 2 to 5%, then allow us without condition. Now they have given condition. I have to go to market for, in the name of so-called reforms. I have to, increase the taxes of the people. I have to increase the municipality tax. I have to increase this and this and this, and whatever they will say, they will impose the tax to us, and then only we will get that money, otherwise no.
So where the money will come? Will it come from the sky? I'm telling you that we are trying our best. It's very difficult to give the salary to the workers. No fund is available. It's very difficult. Even the unorganized sector is suffering a lot. The MSME sector to farmers to unorganized sector. Nothing is there, no help. Only big speech is coming up. And if we want to say something, then of course, there are so many agencies. They will be surrounded by us. Let them. But what to do? Two options are there. Either you fight for the people, and if you don't fight for the people, then there are so many friends, they are just surrounded by us, how they can disturb us. I have not seen in a democracy this type of atrocities. I'm sorry to say, it's most unfortunate part of today. We are facing an acute crisis. We cannot speak. We cannot speak out. We cannot speak freely. The media cannot speak. They are also being guided what to speak, what not to speak. Spending lots of money against us. Now from Facebook to everywhere. The fake news, the distorted news to damage the opposition, especially opposition who are in the opposition, like anything. So they don't care. Nowadays, I have not seen even other thing I want to tell you, madam, just one thing. After that, other friends will speak out. I have seen after Rajiv's death, when I was a youth minister, that time I started one Rajiv Khel Ratna award. But Rajiv's name, there was no scheme like this. The other scheme, never they have done it. Even other prime minister also I have seen. Only Indiraji's time I have seen Indira Awas Yojana. Mahatma Gandhiji's name, this Narega. And now every scheme, the condition is state government will give half funds, central government give half funds. But name of the scheme, they will decide and they will impose. We have to share all the data to them so that they will send letter to every individual. State government is not doing anything. State government is doing faltu work. Nothing is there. Only BJP is working. Nobody is working. This is going on. Horror is going on. So I think it is good that we are sitting here. But today we have to decide regarding our funding, whatever we decide, and our state government, we want our fund should come up. It is we deserve it. It is not that we are begging. We are not going for begging. From my state, I can tell you 53,000 crores I will get from the central government. They are not giving us. Even Amphan, you have seen this big cyclone. 1,000 crores they have given only just advance. Nothing is there. Even disaster management fund has been finished. Nothing is there. So this is the situation. Situation is very, very serious. We have to work very hard and we have to take risk also. If they want to arrest us, let them arrest. I don't mind for that. But we have to speak for the people. That's why we have decided for students' matter also, madam. If with the state government, I have requested Prime Minister to appeal the Supreme Court. It is yes, government can do it through their Attorney General or their Solicitor General. If they don't do it, of course, from our side, we can appeal Supreme Court, and also we can go for some movement also, the public movement. Everywhere Mahatma Gandhi's statue is there, at least on behalf of the students, we can go for a day dharna, strike, something. That will be my request to all of you. I think I have discussed something. So other state government is also fighting the battle like anything. Now, Shaniaji, you may conduct the meeting. Why don't you carry on conducting the meeting? You are sitting here, a senior leader. No, I know that you have to go earlier, so you can conduct it quiet and then I will take on. It is my privilege. I am honored and I am really privileged when you allow us to do it. But I think when you are present here, I think it is better if you can. First name I can announce and then you can do it. All right. I will be sitting here with you. First, may I request Shibu Sorenji? Hemant Sorenji. I have seen him.
I have seen his face. सोरेन जी बताइए, फरमाइए क्या बोलना है. मैं बोलूं? हाँ बोलिए. आपका पिताजी ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे हैं. ही इज नाउ शिफ्टेड टू वेदांता दिल्ली. ही इज फाइन. बोलिए हेमंत जी. मदर फादर बोथ आर पॉजिटिव. Yes, I know. That's why I asked about father. But father is okay. The old health medical issues थे, so that हम लोगों ने ट्रांसफर किया है दिल्ली. Otherwise nothing. बताइए शिबू जी, हेमंत जी, कैसे हम कर सकते हैं? तो शिबू जी का फोटो देखे ना, शिबू जी का नाम याद आता है. मैं सॉरी चाहूंगा भी, थोड़ा सा मैं पहले भी आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दीदी को हमने सुना भी. कुल मिला करके उसी तरीके से हमारी बात है. आज की इस बैठक में आदरणीय सोनिया गांधी जी, विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, हमारे मंडल जी, सबको मेरी तरफ से आज की इस मीटिंग के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन के साथ अपनी ओर से प्रणाम जोहार करता हूँ. और एजेंडा तो मुझे विशेष नहीं मिला है, लेकिन जो बातें हो रही है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के, दीदी ने पूरी बातें कही, लगभग पूरी इलैबोरेट करके उन्होंने कही है. ये बात सही है मैडम कि देश की स्थिति तो बहुत अच्छी है, नहीं जा सकती है. और एग्जाम को लेके जो बातें आई, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हम लोगों को मदद मिलता है, उससे जीएसटी का जो विषय आया, वो सारी बातें आ गई. वही हाल कमोबेश हमारे राज्य में. लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हम ये कहने से हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष हम लोग थोड़ा सा कमजोर होते दिख रहे हैं, चीजों को बहुत जोरदार उठा नहीं पा रहे हैं. और जिस तरीके से सत्ताधारी आज सारी मैकेनिज्म को विपक्ष के विरुद्ध में यूज कर रही है, ये आने वाले समय में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा घाटा है. और आपने देखा किस तरीके से ये कोविड के सिचुएशन में भी इतने जो माइग्रेंट लेबर आए, उनको राज्य में आने के बाद लगभग 7 वीक्स इनको लगा कि मजदूरों को बहुत परेशानी हुई. 7 वीक्स लग गया. उसके बाद ये किसी तरीके से थोड़ी बहुत एक्ट उन लोगों ने किया, फिर बाद में धीरे धीरे मुद्दे बदलते चले जाते हैं ये, और लोगों का जो डिस्कशन ऑफ पॉइंट है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं. आज मैं जो फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा आक्रोश है, विशेषकर युवाओं में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है. क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके रोजगार छीने गए, उनके रोजगार चले गए, ये सभी अर्थशास्त्री टीवी में या अखबारों में लिखते हैं, तो लिखने के बाद पता चलता होगा कि देश की वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. और आज मैं शुरू से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने फ्लैग करता रहा हूँ. आज देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही. जब से जीएसटी इम्पोज हुआ उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई. सारे डिसीजन अब केंद्र सरकार करती है, जो उनको देना है देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे. अपने स्टेटों को, अपने जो उनके एसोसिएट जो स्टेट्स हैं, उनको पॉजिटिव वे में देखते हैं. जो हम अपोजिशन में हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियलिटी तो बिल्कुल क्लियर दिखता है. इसलिए मैंने कहा है कि जीएसटी जिस तरीके से केंद्र सरकार आज सारा बजट अपने ऊपर ले रखी है, क्यों नहीं राज्य सरकार को भी कोई बजट मिले रिसोर्स जनरेट करने के लिए. आज जिस तरीके से रिसोर्स जनरेट करने के लिए जितने भी बेनिफिट कंपनीज हैं, उन सभी बेनिफिट कंपनी को ये देने पे लगे हुए हैं. और अभी सारी चीजों को ये कंपनसेट करने के लिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ रहा है, इससे महंगाई तो घटेगी नहीं, महंगाई तो बढ़नी तय है. और ये कब तक कंपनसेट करके गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आम जनों के ऊपर ये बोझ डालेंगे, ये समझ से परे है.
जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत इतनी पूरी तरीके से गिरी हुई है, तो आज हम देश के लोगों को इतने महंगे पेट्रोल डीजल क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का एक अपना स्ट्रेटेजिकली मूव है, जिससे ये एक रिसोर्स जनरेट राज्य के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि अपने कुछ जो इनके तथाकथित लोग हैं उनके बैलेंस शीट को सुधारने में लगे हुए। जो मुझे जानकारी पता नहीं सही है कि गलत है, जो नमामि गंगे का जो सफाई अभियान चला, 6-7 हजार करोड़ का जो डिसिल्टिंग हुआ, उसमें तो अडानी ग्रुप ने नहीं किया। आज वो तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि वो पैसा गया कहाँ, अब उसकी कोई जांच भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से आज जो भी देश के अंदर लोग अगर थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो तो मनरेगा में कर रहे हैं। हमारे राज्य में तो मनरेगा को हमने बहुत जबरदस्त एक्सप्लोर कर रखा है, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उसमें थोड़ी सी लिबर्टी होने से और आसानी से हम लोग और तेजी से लोगों को जोड़ सकते थे। लेकिन जो पेमेंट का शेड्यूल है, जॉब जो उसने सेलेक्ट करने का इशू है, वो सब राज्य सरकारों को कम से कम फ्री हैंड देना चाहिए कि आप लोग इस तरीके से काम कीजिए, बना करके हम लोग उस तरीके से सेलेक्ट कर पाए। और इस तरीके से तो कई चीजें हैं जो बोलने के लिए है भारत, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस बात को कहा है कि हमारी कमिटमेंट है जीएसटी लगने के बाद हम आपको सर्टेन पीरियड तक कंपनसेशन देंगे। और अभी मुझे लगता है अब चूंकि ये कोरोना का जो संक्रमण आया, इससे तो हम लोग को लगता है कि कंपनसेशन पीरियड का ये पीरियड को भी बढ़ाना चाहिए, कंपनसेशन भी बढ़ना चाहिए और पीरियड को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे रिसोर्स नहीं है। अभी तो बहुत मुश्किल से हमारे जितने भी कोल ब्लॉक्स है, आयरन ब्लॉक्स है, सब आपको बेचने के लिए लगे हुए थे, ऑप्शन करने के लगे हुए थे। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चीजों को मैंने रोका और उस पर हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्स को अपने राज्य के बेनिफिट के लिए कितना यूज कर पाए, रिसोर्स जनरेट कर पाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर एक रुपया की हम मोहताज ना हो। ये हमारा वर्क प्लान में है। और मैडम यहाँ एक और इशू है अभी एग्जाम का, जो नीट का है और जेईई का एग्जाम का विषय, जो लोगों ने इसको दे रखा है, नेशनल एग्जाम क्या है, एनडीए को जो इन लोगों ने सपोर्ट किया है एग्जाम देने के लिए, ये बात है सही है, एग्जाम होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूँ। लेकिन मुझे लगता है इसी से टू हरी, अभी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, अभी मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत कुछ हमारे राज्य में तो स्थिति ये है कि हमारे राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग यहाँ सेंटर डालते हैं। और मुझे जहाँ तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट को ही लोगों ने सेंटर बनाया है। मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। और जो अभी कोरोना तो मेरे दरवाजे तक आ गया है, और उसके बाद जो बच्चे आएंगे, बच्चे अकेले नहीं आते इस एग्जाम में, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हैं, और खासकर जो गर्ल्स होती हैं और पेरेंट्स के साथ आती हैं, मतलब वो एक में डबल ट्रिपल करके वो लोग आएंगे, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, जिससे संक्रमण उस समय और ज्यादा होने की संभावनाएं भी होंगी। मुझे लगता है इसमें डिले करने के लिए और कोई सरकार को कुछ फैसिलिटेट करे केंद्र सरकार, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस एग्जाम को करा पाए। नहीं तो फिर जो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों को मत डालेंगे कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के पास ना वेंटिलेटर अभी हमारे पास उपलब्ध है, ना बेड इतना सफिशिएंट लोगों के लिए उपलब्ध है, ना हमारे पास वैसे रेस्क्यू सिस्टम हमारे पास इमीडिएट हम जनरेट कर पाए। तो है समस्या तो है ना, लेकिन इसके लिए हम लोगों को लगता है कि ज्वाइंटली कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, थोड़ा विपक्ष की आवाज थोड़ी बहुत कमजोर हमको महसूस हो रही है, और ये लोग तो किस तरीके से आए थे, कभी सरकार को परेशान करो, कभी उस सरकार को परेशान करो, कभी इस विधायक को परेशान करो, कभी इस मिनिस्टर को परेशान करो, इसी में फंसा करके हम लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और हम लोग इनके में
जाते हैं, और इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा उनके जो स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकल डाइवर्ट उस पर भी एक कड़ा नजर रखते हुए हम लोग को उनको हिट करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों ने गलतियां इतनी कर रखी हैं मैम कि हम लोग सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर बातों को रखें, तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग इनको ये करें। अब जैसे इन लोग सब आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जितने भी जो प्रॉफिट कंपनीज हैं सबका प्राइवेटाइजेशन करने के लगे, खासकर रेलवे का। रेलवे को हुआ, रेलवे करने की वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉय होने की स्थिति पर आए हो गए, और कितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बेरोजगार होने, वो तो आप सब लोगों को मालूम। अभी भेल, गेल, एनटीपीसी से इन सबको बेचने की तैयारी चल रही है। कैसे चलेगा? फिर हम लोग किस और देश को ले जाना चाहते हैं, और वैसे भी अर्थव्यवस्था पर खड़ा होने के नाम पर तो कहीं मुझे दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा। इतने सरकार पैसे रिजर्व बैंक से निकालती है, आम लोगों को तो मिल ही नहीं, ना फैक्ट्री चल रही है, ना छोटे चल रहे हैं, ना मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज कर रही है, लेकिन सबसे में इन्फ्लुएंस जरूर दिखता है। और ये कौन सा इकोनॉमिक है, ये मुझे समझ में नहीं समझ में आता है। कोई इंडस्ट्री चल नहीं रहा, रोजगार हो नहीं रहा, आर्थिक सेंसेक्स बड़ा कैसे रहा, ये कहाँ का फॉर्मूला है? ये कौन अर्थशास्त्री बताता है? ये और जितने भी आज देश की स्थिति को बताने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो क्राइम रिपोर्ट हो, चाहे डेवलपमेंट ये हो, वो सारी संस्थाएं आज बंद हो गई हैं। कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है, किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता ही नहीं चलता है। कैसे हम लोग चीजों को आगे दिशा दे पाएंगे लोगों? इसलिए थोड़ा सा हम लोग, मैडम आपने अच्छा पहल किया है, और हम लोग मजबूर भी हैं कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि मिलने के भी, और या तो इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग रेगुलर एक सीटिंग करें, ताकि हम लोग को इनके जो षड्यंत्र है इसको हम लोग बिल्कुल जवाब दे पाए। इसलिए और इन्वायरमेंट ये का भी इश्यूज इन लोगों ने अभी जो नया ये किया है, मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूँ। इन लोगों ने जो नया अमेंडमेंट EIA का जो इन लोगों ने किया है, जो पब्लिक डोमेन पे इन लोगों ने रखा भी था, लगभग 20 लाख लोगों ने सजेशंस दिए। इसमें जो मेजर इन लोगों ने चेंजेस किया है, पोस्ट फैक्टर एनवायरमेंट क्लियरेंस का, मैडम ये तो डिजास्टर होगा राज्यों के लिए। आर्बिट्रेरी एक्सपेंशन जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो है, और इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक हेयरिंग को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। ये पूरी तरीके से मैडम हमारे लिए तो हमारे जैसे माइनिंग स्टेट्स के लिए तो बहुत बुरा है, और इनकी तो हमारी बिग नजर पड़ी हुई है हमारे स्टेट में। मैं तो अपोज कर रहा हूँ, लेटेस्ट से देखते हैं कब तक हम कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कभी कभी डराने धमकाने का भी काम करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इन सब चीजों पर भी जो है बात रखनी चाहिए। इस तरीके के मैडम हमको बातें बहुत है, लेकिन आप लोग सीनियर लोग हैं, आपको ज्यादा एसेस करते हैं, आप लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बेहतर प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग होनी चाहिए और जोरदार होना चाहिए, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। Mata ji, Yes, madam, yes. I'm told that Uddhav Thackeray ji has to go Yes, yes. very soon, so that he should speak and then you ask. हाँ, आप बोल दीजिए ना उद्धव जी। देवी इधर है। आप बहुत बढ़िया फाइट कर रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। लड़ने वाला बेटा हूँ मैं। गणेश चतुर्थी। हाँ। उदय जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, फिर से अपनी पार्टी की कमान संभाली है, और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आज का जो विषय है, मैं नहीं मानता कि जितने सारे हमारे साथी मुख्यमंत्री जी है, किसी का भी मत इससे अलग होगा। सब सारे एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं, और लड़ाई तो चल रही है। हेमंत जी, पहले जैसे आपने जो बात कही, हमें तय करना चाहिए, एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है? लड़ना है। पहला ये देखो,
रहेंगे, हम खाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, तो नहीं, इससे मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा। और हमारा तो यही है, सत्य में वो जैसे ऐसे तो ये नहीं कि आज तक कभी सत्ता में वो जैसे नहीं है, सत्य में वो जैसे है। तो लड़ना है तो लड़ना है। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी होती है, उसका आवाज सबसे ऊंचा होता है, और वो अगर कोई दबाने की कोशिश करे तो उसकी आवाज उठानी चाहिए और वो हमारा कर्तव्य बनता है। फिर 2-3 मुद्दे जो मेरे पास आए हैं, एक तो जीएसटी की बात, दीदी आपने जो कही वही सारे लोगों की स्थिति है। लगातार ये जो पूंजी है बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन एक महीना जैसे आगे आगे निकल जा रहे हैं। केंद्र से आने की जो जितने पैसे हैं उसमें बढ़त हो रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है। मैंने आज जानकारी दी, बीच में आप क्या करें, सब फिक्स करेंगे, पत्र लिखो, और जब भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है आपने देखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जितने बाकी सारे दुख है वो उस स्वाद में नहीं कहता हूँ। जो भी कोविड के बारे में होता है, मैं कोविड के बारे में कहता हूँ। अन्यथा बीच में हम खत तो लिखते रहते हैं, कभी जवाब आता है, कभी आता नहीं, जवाब आता है तो भी पैसे कभी आते हैं, अप्रैल से तो शायद आए भी नहीं है। तो ये स्थिति आज के दिन हमारी सबकी है। लड़ तो सभी रहे, कोविड के साथ लड़ रहे, अपनी ही सरकार है, इसलिए हम विपक्ष में। विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी का हम बुरा चाहते, इसलिए हम भी आम आदमी की उसके हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम भी कुछ हमारा अधिकार है। आज कैसे होता है कि राजीव जी की बात करें तो उन्होंने पंचायत राज वो एक बात कही थी। पंचायत राज का मतलब क्या है कि जो भी सत्ता होती है उसको छोटे इसमें केंद्र में उनका अधिकार दे दो। आज क्या हो गया, आज सबके जो अधिकार है एक आदमी चले जा रहे। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारा राज्य सरकार का मतलब क्या है? क्या कभी आगे जाकर ऐसे हो जाएगा कि राज्य सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक ही व्यक्ति देश चलेगा और हम खाली हाँ में हाँ मिला करेंगे, ये नहीं होगा। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो उसको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उसको ध्यान में रखकर हमारी घटना बनाई है, और उस घटना में जो भी अधिकार सबको दिए हैं इसका अगर हम आदर नहीं करेंगे तो फिर हमारे डेमोक्रेसी है कहाँ? तो डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें तो डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचाई पर है हमारी घटना, और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात की गई है उसको तो उसकी रक्षा करना। तो सरकार चलानी, हम सरकार को चलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन घटना का रक्षा करना वो भी काम है। तो इसीलिए जीएसटी के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसके ऊपर भी फिर विचार होने की आवश्यकता है कि पहला जो स्ट्रक्चर था हो सकती है कुछ बात हो सकती है कि कुछ अगर कुछ बदलाव लाए, अच्छा भी हो सकता है, बदलाव लाए तो गलत भी हो सकता है। अगर गलती हो सुधारी भी जानी चाहिए, सुधारने की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार कर आगे जाना चाहिए। तो एक बात तो मैं मानता हूँ कि केंद्र से पैसा कितना आना बाकी है वो तो है, लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर पहले था वो और आज का जो है इसके बीच में कुछ रास्ता निकलना चाहिए कि पहले था वो सही था, इसके ऊपर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने तो शायद मई या अप्रैल जून में हमने एक डिसीजन लिया, जो फाइनल ईयर है जितने सेमिस्टर हुए हैं उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए गए, और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। लेकिन जून महीने की अगर हम बात कर रहे थे तो मैं कहता हूँ तो जून की स्थिति और आज की स्थिति, आज कोई एक घंटा बड़ा है और हमारे शहर में ठीक है, हमारे मुंबई में तो हमें कंट्रोल को नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में आ ही रहे हैं, लेकिन और कुछ जगह वो फैल रहा है, कोरोना थोड़ा फैल रहा है। तो जून से आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है। तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे तो आज ये जब संकट बढ़ गया है तो हम कैसे परीक्षा ले सकते, एग्जाम कैसे ले सकते? और इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सेमिस्टर हो गए उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए। बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको पास कर देंगे और बाद में जब भी संभव हो हम एग्जाम जरूर लेंगे। और अगर किसी बच्चे की ऐसी धारणा होगी कि अगर एग्जाम होता तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था, तो वो उसकी मर्जी, वो एग्जाम वो दे सकता है। फिर एग्रीगेट किए हुए मार्क्स और एग्जाम में मिले हुए मार्क्स चुनना उसका काम है। तो मैंने पहले कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन आज के दिन ये स्थिति नहीं है। और जैसे कई
बाहर के देशों की ओर हम देखें, मैंने भी इसकी खबर पढ़ी थी, यूएस में उन्होंने स्कूल खोल ली और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे 1 लाख के आसपास संक्रमित हो गए। क्या करेंगे, ऐसे अगर स्थिति हमारे यहाँ रही है। हमने उद्योग तो मई महीने में ही शुरू कर दिए। आज भी हमारे यहाँ जो इलाका है, जो सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, मुंबई से लेकर पूरा तक, वहां हमें लॉकडाउन है, जरूर है, लेकिन आहिस्ते 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 हम इसको खोलते जा रहे हैं। मिशन बिगिन अगेन। तो आहिस्ते आहिस्ते खोलने की वक्त शायद कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि हम काफी स्लो जा रहे हैं। स्लो ठीक है, वो टॉर्चर और वो खरगोश, उसकी तो कहानी सबको पता है। जलमती कर कुछ फायदा नहीं होता है। आहिस्ते कदम जाए, लेकिन सीखते जा रहे, तो जो कदम हम आगे बढ़ाएंगे उसको वापस लेने की आपत्ति हम पर नहीं आनी चाहिए। तो समझकर हम आगे जा रहे हैं। तो सारी चीजें हम खोलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम खोलते जा रहे हैं। मैंने स्कूल के बारे में भी यही कहा कि स्कूल शुरू कब होंगे, स्कूल शुरू नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन शुरू करेंगे, तो चाहे ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, ये लर्निंग हो। तो इस विषय पर भी हम काम कर रहे हैं। जो बात मुझे दिखाई दे रही है, एनवायरमेंट की जो बात रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। हमने तो एक लेटर दे दिया है जावड़ेकर जी को। वैसे तो आदित्य ने 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री को लेटर दिया है एजुकेशन के बारे में, और उसमें आदित्य ने लिखा है कि ये जो एजुकेशन एकेडमिक ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर, वो आगे बढ़ा है। एकेडमिक ईयर भी क्या हम जनवरी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज तक देश की अगर बात करें तो हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। कुछ राज्य नसीब वाले हैं और वो नसीब वाले ही रहे कि जहां उनके यहाँ इसका ये संक्रमण कम हुआ होगा, अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ तो वैसे नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही केयरफुली हमें आगे जाने की आवश्यकता है, और इसलिए आगे ने कहा कि एकेडमिक ईयर हम आगे करेंगे, चाहे उसको शुरू करेंगे। तो वैसे ही एनवायरमेंट की बात करें, अब क्या करते हैं, विकास के लिए। हाँ, चाहिए विकास। हम तो सरकार इसलिए सरकार में आए कि विकास के लिए आए हैं। कुछ लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम तो विकास के लिए आए हैं। और आप सभी को याद होगा, लगभग हमारा सेशन तो उसी दरमियान चलता रहता है। मार्च महीने में हमारा मार्च का सेशन चल रहा था, बजट हमने पेश किया, और 2-4 दिन में हमें सेशन समाप्त करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना शुरू हो गया। सबसे घर में बैठे, वर्क फ्रॉम होम, और ऐसी बात मुलाकातें होती रही। तो विकास के लिए हम तो सरकार में आए हैं, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं कि जहां चाहे हम हमारी मर्जी कुछ भी करें, जंगल है तोड़ लो और वहां से कुछ भी तोड़ दें। और इसीलिए खासकर कर हमारे विदर्भ से जाने वाला रेलवे का एक रूट है अकोला खांडवा, वो मध्य प्रदेश जाता है। तो जाता है बीच हमारे जंगल से मेघाट, जो टाइगर का वहां जंगल है। तो हमने उनको ये कहा कि अल्टरनेट कुछ करें कि बीच जंगल से ये रास्ते जा रहे हैं, तो हम घुमा कर लेके जाए, तो ज्यादा बस्ती, ज्यादा लोगों को इस्तेमाल होगा। तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। आसान उत्तर हम जरूर निकाल सकते, लेकिन आगे जाकर हमें आपत्ति आ सकती है। तो ये सारी बातें हमारी होती रहती है, लेकिन दीदी आपने जो बात कही कि हमें मिलते रहना चाहिए। जब भी कोई आपत्ति आती है तो हम कानून बात करके इकट्ठा आते हैं। क्यों आपत्ति की जरूरत है, क्या हमें इकट्ठा लाने के लिए? आपत्ति के बिना में आप मिलते रहना चाहिए। अगर हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति की क्या हिम्मत है हमारे साथ आए। हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति भी डर कर रहेगी, अरे ये तो इसके नजदीक जाने का खतरा है। आपत्ति को खतरा महसूस होना चाहिए, हमें भी। और ये जो बात हम जो कर रहे हैं, ये कॉमन मैन की बात है। जैसे जीएसटी की बात है, पैसा आएगा नहीं तो हम पैसा कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा कि सारी बातें हम तो फ्री दे रहे, ट्रीटमेंट भी दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। अभी सितंबर से लेकर वो केंद्र से जो पीपी वेंटिलेटर जो आने वाला था, आ रहा था, वो भी बंद होने जा रहा है। वो उधर मैंने पिछले प्रधानमंत्री जी के साथ कॉन्फ्रेंस में मैंने उठाया था। एक चीज वो बंद करते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ हमें देने की आवश्यकता हो रही है, जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी बातें हमें सोच समझकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, और उसका मिलकर हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और हमारी जनता, ठीक है, हमें भी वोट दिए है, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी वोट दिया। मतलब ये जनता कोई हमें वोट देने वाली जनता बाहर से आई है और वहां उसको वोट देने वाली जनता यहाँ की है, इस बात की एक ही जनता है। जनता तो वही है, लेकिन हम करें तो पास
और वो करे तो पुण्य, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ कर एक प्रोग्राम होना चाहिए, देते तो रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो बिना मास्क, आज सुबह बिना मास्क आपके साथ से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे घर पे बैठा हूँ। हेमंत जी आप भी सारे बातें करके हम आपने अपने घर में, लेकिन उस दिन की हम कामना करते प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द ये कोरोना का संकट टल जाए और हम खुलेआम एक दूसरे के साथ ऐसे आमने सामने बैठकर बात कर सके। मुझे तो इतना ही कहना था, जो भी हमें करना है सब साथ मिलकर करेंगे। जनता की आवाज है, वो कोई दबा सकता नहीं, और दबाने की अगर कोई कोशिश करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो आवाज और ऊंचा करे। तो सोनिया जी आपको मैं अभी धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने मुझे जल्दी बात करने के लिए इजाजत दी और मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मेरी कैबिनेट अभी शुरू हो जाएगी तो इसलिए मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। इजाजत रेडी, आप सबकी को कैबिनेट के लिए मैं जाऊंगा और सबको मेरी शुभकामनाएं। साथ है और साथ में रहेंगे, साथ में लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुनिए जी, ये बात तो ठीक कहा है कि हम लोग ने प्रोग्राम हमको लेना जरूरी है कि किसी को भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक क्या करते हैं पूरा चीज को डाइवर्ट करके सबको अलग अलग करके रख देते हैं। बट वी मस्ट रेज आवर वन वॉइस, नहीं तो देश में क्या होगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी रहेगा ही नहीं। No, I agree. I agree that we have to work together and fight together. अभी तो आपका पार्टी का Anurinda ji? Good afternoon. Yes. Good afternoon, ma'am. Fellow Chief Ministers, good afternoon. Ma'am, I think शुरू करें as the root of all evil is COVID, and the COVID situation is bad, it's getting worse. जैसे मैंने आपको बताया था that we are likely to reach a peak by mid to end September, and आज हमारे 44,000 cases हैं जो हो चुके हैं, जिसमें से 29,000 have been cured and sent back. But this 44,000 is likely to go up to 110,000 by the 18th, according to the doctor's team that is handling this situation. I'm worried more about this case of deaths. We have had 1,178 deaths, 49 yesterday, and the possibility is that the predictions are that up to 3,000 we will go by the slope September. Now, in a scenario like that, when we are at the peak, what my colleagues from Bihar and Jharkhand and Maharashtra and Bengal have said, we are in the same scenario. We are today in a situation where the finances of our states are completely down. I can tell you that I don't know what the today statement has come from the finance minister that the GST is going to be on schedule. But my immediate finance minister has gone from Punjab today to Bihar, and let us see what happens there. But what information we have received just now is that they have taken the opinion of the Attorney General, who says that according to sources, the Attorney General has opined that there is no obligation on the central government to pay the GST compensation shortfall to the states. And GST Council has to decide on ways to make good the shortfall in compensation fund. Now, if we are not going to get compensation and we are not going to get our GST, and as of now, the situation is this, that my own state is down, my own revenues are down in GST by 38%, VAT minus 31%, state excise just 1% positive, taxes on vehicles minus 63%, this is compared to last year, and stamps and registration minus 41%, electricity duty 25%. This year, financial year, will be ending with something like 25,000 crore deficit. I don't have money. I don't have money to run. For Corona, I've got, we have already spent nearly 500 crores. Government of India has given us 101 crores, and they say that they're going to give us 30 more. And this thing is going to, it's growing,
from our cities now to going into the villages, and we are going to be into a serious financial crisis. How do we handle this? This is one thing which I'm going to say. And I agree with what Mantari says. And I think all of us should collectively go and see the Prime Minister and go and tell him what we think of what the situation is like. And after all, he's the Prime Minister of the state. He has to give we've given all the powers of taxation to him through the GST. If we are all our taxes which we used to collect are now to be collected by him, and now they're saying that they may not be able to pay it, they don't have the equipment to give it to us, then how do our states run? So we've got this sort of scenario which is developing, which is compensation. They have paid me GST up to March. Now 2 quarters they haven't paid. So we received 6,900 up to March, and in the last 2 quarters we are due 7,000 crores. That's not paid. And I don't know when they're going to pay it according to their commitments, which they are making. We have asked that the revenue deficit grant be allowed on 15 Finance Commission should be allowed for the year 2021 they're giving it, but for the next 4 years as well. That they are not agreeing to. The Government of India should provide liberal financial assistance for the decrease in revenue collection for COVID-19. That they are not agreeing to. Punjab, as I said, will receive about 500 crores and 102 crores from them. They said 30 crores more, and we have spent 500 crores. And that this figure is going to go higher and higher. And when we started off COVID in March, we had 200 tests a day. Now we have 25,000 tests a day. And by the end of this month, we'll be going to 13,000 tests a day. Now, every time, of course, that takes a number of figures up. But what does it mean? It means that corona is there, and it's only showing up in the tests. And once we go to 30, it's going to go further up. But now, things are bad. I had to now. I got in the primary and secondary sectors we are under control, and the tertiary sectors we are not under control. We have to now somehow put a block on this that is happening and the growth that is taking place. So what I have had to do is I have to clamp down in certain areas to keep this under control. I even have today, there are people which are 499 are today under oxygen handling being administered oxygen in the hospitals, and 55 on ventilators. 10 were yesterday added to this, and 85 yesterday were added to oxygen. So you see the figures how they're going. Every day I see these figures, and it sort of are figures that are unacceptable to me at least. And I want to do what we can to do this, but it has to be a combined effort, and on the part of the Government of India to give us this resource. Because the resources states can't manage. Look at Maharashtra, what a big state it is. Look at Bengal, what a big state it is, and the chief ministers are giving their views. And we are a tiny state, we are 2% of the country, we are a small state. And we have all these problems, and these problems are continuing. Because I'm getting people coming in from overseas, and then people coming in from other states which are affected. I'm getting nearly 8,000 vehicles which are moving into Punjab every day. And my figures are going up and up and up because this spread is taking place. And I don't think the Government of India seems to be at least interested in the least in what we are doing. What we are. I've written to the Prime Minister, I've written to the Home Minister, I've written to everyone who matters, and that is it. We have never had a reply on this issue. That's the financial situation. Our finance minister is constantly in touch with Mrs. Sitaraman, and they are also not getting any commitments. So these are the things we have to do. This is something that I think if we combine to it, and Mantari has suggested another thing. On education. Now education is a problem for us now. We have in schools what we have done is that anyone who has passed the pre-exam, for instance, we are promoting. We are not getting them there. The reason is very simple. If in September I am going to touch a peak, how can I get my school soon? How can colleges function? We have written to the Prime Minister 3 times on this issue of University Grants Commission. We told to hold the other college exams to delay them or to let the students be passed. We have told no. Now I think if, as Mantari has suggested, all of us, but the states, take this up combined with the Supreme Court and fight it out there. And let's try and see that the Supreme Court, which has so far
given a negative opinion, may on a review petition, may listen to us. Because we are all concerned, we are not, I mean, we would like to have the exam, we would like the children to pass. But how can I bring the children to school when once I'm running a crisis in the state because of this COVID? So this is something that we cannot do. We have written to the UGC. My vice chancellors have written to the UGC. The Guru Nanak Dev University vice chancellor has been in the UGC. He knows all the people there. He need to talk to them, but they don't agree, and then of course Supreme Court has given. But I'm sure if we all go combined to that, this can help. We've done that for the schools, Nas colleges, and the other one is that you mentioned about the professional examinations. That I think these ones of the NEET and IT and the JEE, common law, aptitude tests, etc. These can be done online. Nobody is on the professionalism. Nobody is saying that it shouldn't be online. They can be done online, and I think government should agree. It's been happening in the past. It's happening now all over the world. Why can't it happen here? That's not what I'm talking about. I'm talking about our colleges and schools, our colleges exams. It could be the MAs and whatever they are. That's at the university level. So this is basically what we are. And third thing for me, which is a very important issue. I have 317,000 SC students in the state. I'm the largest population of SC population in any state. We are 32%. No state has got 32% SC other than us and us. And the government of India used to give us a certain grant for their post-metric scholarships. Now they told us, and post-metric scholarships, what it cost us is about 720 crores a year, which they used to give us. Now they say that you spend up to 800 crores and anything more than that we give. Well, we don't have anything more than that. And we only want that 720 crores to come to us. If you are not going to give me for my SC students, and how do my post students go to school and study? Now this is something which I find a very strange thing. That you are not even willing to contribute to the SC students of my state. I don't have money. I don't have money sometimes to even think how, I have to think sometimes how I'm going to pay my salaries. How am I going to pay various compensations or various commitments that the state has made? And then on top of that, you can trust this also on us. I would like all my children to be educated, and that 32% is one-third of Punjab. How can I just leave them out? And I don't think the government of India has any business to cut it out for the poor families and for the diseased families of the state. So this is another issue which I want you to mention. And finally, ma'am, there is new education policy as well. Now, they have not consulted us. I don't think they consulted any of my colleagues also. They have just gone and trusted education policy on us, without us knowing what they're planning, without us knowing what is going to cost us, without us knowing whether it suits us or not. What suits us may not suit Assam, may not suit Kerala. We have a different, every state has its own system of these education policies. So I would like that we are going to look through this. We are going to be putting up a committee to look into it. We want you to trust in us. What is the impact it's going to have on our education? What's the impact it's going to have on our finances? And then only we can answer this. So this is something another, I think it will affect the other states as well to consider this issue. And lastly, ma'am, just to give you some information which is that just like day after tomorrow our Vedanta Sabha is starting. And we have said that everyone should, including the Chief Minister downwards, every MLA must have his COVID test done. A few were done today, and 23 of my MLAs are positive as of today. Now these tests are going to continue tomorrow and day after tomorrow. Now you can imagine that if these are the state of my legislators and ministers, what is the situation in our state? So therefore, it is my request to you that I think we should collectively meet and go and see the Prime Minister and request our colleagues from other states, not from our party, like Thakurji and Hemantji and also Mamtaji, to come along with us and let us force this issue and inform him that we are not asking for anything out of the moon or out of the blue. We are asking for something which we think every state must get.
their stage 2 and our stage 2, and so that we can at least move forward and try and get over this crisis which is it hasn't got solved. Thank you. अमरेंद्र जी, जस्ट 1 मिनट मैडम सोनिया जी। अमरेंद्र जी, अगर वो एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग स्टेट मिलके रिव्यू कर सकता है तो क्या आप इसको मानेंगे? मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो हम लोग एक साथ में इसको तो रिव्यू पिटिशन तो हम कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं तो ऑल वी आर प्रेजेंट हियर, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। मैंने तो रिक्वेस्ट किया ममता जी that all of us, Yes, yes. all of us who are sitting here, we should unitedly work. दीदी सर, हाँ, मुझे लगता है कि कोर्ट जाने से पहले एक बार पीएम यहाँ चला जाए या प्रेसिडेंट यहाँ चला जाए, मुझे लगता है ये स्टेप उठाना है। पीएम का एग्जाम दैट बी हेल्ड इन सितंबर तो कब से 5 सितंबर से शुरू किया। If we go ask for time, the Prime Minister कभी 2-3 हफ्ते ना मिले तो फिर कैसे करेंगे? Because September the exam are due. 5 सितंबर को एग्जाम है और प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने लेटर लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी के लिए स्टूडेंट लोग भी अभी खतरे में है ना, वो लाइफ क्यों रिस्क लेंगे? अगर उसको एक साथ में जैसा सिस्टम किया है उसमें तो लाइफ रिस्क हो जाएगा। कितना एमएलए हमारा अभी कोविड में अटैक है, कितना मिनिस्टर कोविड में अटैक है, इवन देश का होम मिनिस्टर कैसा है मेरे को पता नहीं है। तो इस परिस्थिति में दीदी आज के दिन में लगभग 70,000 पर डे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे? हम कैसे स्टूडेंट को खतरा में डालेंगे? तो लेट अस फाइट इट। हाँ, एक बात ठीक है, कल आप अगर दिल्ली में जो प्रेजेंट है और जो नहीं है जाके एक प्राइम मिनिस्टर का साथ मीट से कर सकता है, सोनिया जी अगर इसको एग्रीड करे तो। लेकिन उसका बाद नहीं सुने तो हमको तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है। विल बी वेटिंग। पंजाब चीफ मिनिस्टर यू टेक द लीड। हम लोग देखिए एक साथ में हम लोग अपील करेंगे तो आप लोग एक ही जगह से होना चाहिए। यस, 26, 27, 28, 29, 30 फर्स्ट को एग्जाम ना, फर्स्ट का एग्जाम है, इसी के लिए जल्दी से जल्दी करना है। काल परसों में ही करना है, नहीं तो नहीं होगा। सभी because September 1st को आ गए हैं हमारे पास। वही तो। Why do you take for that? Let us go to court. That's why I'm telling you, पंजाब चीफ मिनिस्टर यू टेक द लीड। आप कर लो, हम लोग सब एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करके बेटर होगा। हेमंत जी, अगर उद्धव जी भी अभी नहीं है लेकिन सब पार्टी तो है, एक साथ में 6-7 स्टेट भी हम करें ना तो अदर स्टेट, नवीन जी भी कल हम सुना है उन्होंने कहा कि हम लोग इसको पोस्टपोन करने चाहते हैं। और भी बहुत स्टेट है जो हमारे साथ नहीं सकता है, नहीं रह सकता है, लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट के बारे में सबको करना पड़ेगा। इसी के बारे में आज मीटिंग से तो इसका बारे में एक लीड लीजिए। दूसरी बात यह है कि कोरोना थोड़ा कमती होने का बाद एक डेपुटेशन पीएम का साथ मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट का पास भी जाना चाहिए। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सोनिया जी आप लोग तो दिल्ली में यू आर सेटल देयर, तो उधर में भी एक डेलीगेशन हम पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को पास, जो स्टेट का बारे में जो बोलना है इसको बारे में जल्दी से जल्दी करना है। हमारा बोलता है नहीं देगा, अरे नहीं देगा तो हमारा टाका रुपया लेके चला जाता है और बोलता है नहीं देगा तो स्टेट चलेगा कैसे? नहीं, सही बात। अभी मैडम जो एग्जाम का डेट इन लोगों ने डिक्लेयर किया है उसमें कोई एसओपी भी तो नहीं बताया है कि कैसे होगा नहीं होगा। नहीं, वो क्या किया, नहीं हेमंत जी, वो काल एक लेटर दे दिया। काल एक लेटर देके बोला है कि देखो आपका सारा देश भर यही जगह सेंटर होगा, वो सेंटर में इतना 50 लाख इतना करीब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो फिजिकली डिस्टेंसिंग, उसका लाइफ सिक्योरिटी है, उसका लाइफ का सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगा। अगर वो करियर के लिए जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी भी हम लोगों को देखना कर्तव्य है। कैसे हम स्टूडेंट लोगों को जिंदगी खतरा में डाल सकते हैं? इसी के लिए ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, बहुत कुछ खुल जाएगा। पेरेंट भी है ना, पूरा पेरेंट भी है। भगत सर प्रणाम, गहलोत सर प्रणाम। अच्छा है, कैसे हैं?
साथ मीडिया में जहाँ सब लोग इसी इतनी गुजर रहे हैं और जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी मजबूत इतनी तब तो ये सब बातें करने का उपयोगिता देने को भी होती है। तो सरकारी क्या उचित है, क्योंकि जब से सरकार बनी है 14 में, तब से ही जो रवैया सरकार का है उस प्रकार का बन गया है कि कोई लोगों में भूल महसूस हो रही है कि कह तो किसको कहें और कह वो सुनेगा क्या। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया, सबको मालूम है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक लॉकडाउन था। लॉकडाउन तो इसमें गवर्नमेंट ने आया था, लेकिन सरकार कदम उठाए गए तो कम से कम इम्पैक्ट बहुत कम रहा देश का। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने मैं देखा किस प्रकार से करने की बात हुई थी, तो विद्यार्थी हो गए, चाहे वो आरटी था या आरटी था या कुछ सिलेक्ट था और जब नहीं आज नहीं का कुछ विद्यार्थी बचाए गए और इम्पैक्ट पड़ गया। परंतु कुछ बात का है कि कोरोना में जो स्थिति बनी है राज्यों की पूरी लड़ाई राज्य सरकार लड़ रही है और केंद्र सरकार से खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस या कुछ भी नहीं होगा। जो हमने सुझाव दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, उन सुझाव को ध्यान नहीं दिया गया और अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, वो भी खाली एक प्रकार से लोन जाएगा है, लोन के आधार पर है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, सब्सिडी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राज्यों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो हमने वादे के लिए जनता बजट पेश किया था और बिल्कुल हमारे थे, सबको मालूम है कि उसके कारण से रेवेन्यू 40% रह गई है राज्यों की और बिना केंद्रीय सहयोग से राज्य सरकारें जो कमिटमेंट पूरा कर नहीं सकती, हमें अपने बजट जो बनाया हुआ है कटौती करनी पड़ रही है और स्टेट मेजर हमारे उठा रहे हैं। तो अपना समय समझ चला, उसके कारण की स्थिति बिगड़ गई। सब जगह व्यापार को इंडस्ट्री खत्म हो गए। वक्त लगेगा कि सभी को मेरे प्रॉब्लम से रेवेन्यू वक्त लगेगा। तो तमाम पुलिस आके जो बातें बनाई है वो हकीकत में है कि आज जो जीएसटी निवाला किया केंद्र सरकार का, आज हमारे स्टेट में करीब 6,090 करोड़ रुपए बकाया हुए हैं और उसका कोई जवाब नहीं है। वो हमने 25-30 जनवरी का प्रधानमंत्री जी को जवाब आते नहीं रास्ते, अगर कोई मुख्यमंत्री पत्र लिखे तो जवाब नहीं आए तो फिर क्या उम्मीद करेंगे सरकार। जो वादे किए गए थे जीएसटी को लेकर ऊपर हो गए हैं, अब तो मांग करें कि 5,000 और बढ़ाया जा रहा है, मांग किसे करें जब लोग अपनी जीएसटी बेनिफिशियरी मंथली वो भी मिल पा रही है। उन्हें मांगी थी कि फॉलोइंग जो मिलती है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये जीडीपी का हम क्या कहते हैं 3% 5% मिले इसे जीडीपी का हेलो क्या पकड़ते हैं लगा नहीं हो सकते पूरे हो सकते। हमने सिंपल मांग करी मॉनिटरिंग की राज्य सरकार ने कर दे हैं बात सरकार के निश्चित से और कॉलेज कॉर्पोरेशन से अन्य एजेंसी ने करीब 6 महीने का मॉनिटरिंग चाहिए उसकी प्रॉपर्टी चली गई। आरबीआई देती है रियल इन्वेस्ट में एडवांस देती है, अपने यहाँ ग्राहकों कर दो कोरोना के अंदर, उसकी प्रमाण दी गई। अपनी स्थिति ऐसी गंभीर राज्यों की लिक्विडिटी की प्रमाण रहती है। इस प्रकार हम सरकार चुकाएंगे टाइमली, वो सब हमारा सामने खड़ा है। और तो सीएसएस की स्कीम होती है, सर्विस स्कीम, उससे जो पहले फॉर्मूला का रूप बदल दिया गया, जो पहले आराम से पैसा मिलता था तो अपनी अपना पैसा चला करते थे, अब उन्होंने जो फॉर्मूला मिला है वो रीप्लेस कर दिया है। उसे और ज्यादा मुश्किल पैदा हो गई कि राज्यों में सीएसएस के काम जो है वो मिल जाएंगे। और तो जो
लिए कोरोना में मृत्यु के कहते हैं कि उसने एक महीने में 8 करोड़ कमी आई, एक महीने का। सोच सकते हैं अगले महीने में क्या होगा। तो चारों ओर से हम लोग घिरे रहे हैं और सरकार को तो परवाह इन बातों की है नहीं, सरकार को परवाह है, सरकार गिराए के जैसे उन्होंने करोड़ का भेज चला, मॉडल भेज चला, रायता बीमारी आपके आशीर्वाद से बढ़ गए हम लोग। और जो सुनते रहते हैं कि महाराष्ट्र हो झारखंड हो या कोई राज्य हो, उनकी पानी कैसे लगे। जब हम ये बातें सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि इसमें क्या होगा। इन स्थितियों में हम लोग चाह रहे हैं जो बहुत ही चिंता बना हुआ है। परम सरकार को पता नहीं है कि क्या किसी एक्सपर्ट कोई बात करे देश के अंदर, इकोनॉमिस्ट कुछ भी कह दे, आज ये गवर्नर ने कुछ भी कह दे, और पीएम की जो एडवाइजर थे इकोनॉमिक के उन्हीं अपने आगे पर फिर भी सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, कोई पता नहीं आर्थिक व्यवस्था लेके लोगों को विश्वास खत्म हो गया। सरकार को इसके बारे में विचार नहीं कर रही, सोच भी नहीं क्या होगा आगे। स्थिति बड़ी उल्टी होते जा रही है और हर फैसले उल्टे हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार आंकड़े इस प्रकार से ऐसे बढ़ाई जा रही है, लगातार 617 बढ़ाई जा रही है और 115 डॉलर प्रति बैरल से लगा करके $19 आ गए। जब लगातार प्राइस बढ़ रही है, पूरा पहले केंद्र सरकार ले रही है, मिलियन पूर्ण होता है राष्ट्रीय पूजा वाला उनको कटौती हो रही है। इस प्रकार से स्थिति बन गई है। तो ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो काम किया वो बेमिसाल किया राशि, इसमें कोई बुरा नहीं। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने आपका सोशल कमिटमेंट भी पूरा किया है, ऐसे के बढ़ाया हम लोगों ने। और आज स्थिति है कि पॉजिटिविटी की रेट जो है 3.38% है और सबसे अच्छी जगह आपका बाकी जगह 8.73% है। फर्टिलिटी रेट जो है लगातार 1.34% है, जो सबसे कम है देश के अंदर। और तो और रिकवरी रेट जो है और करीब 50,000 पे एकड़ हो रहे हैं और हमने ऑफर किया पड़ोसी राज्यों को भी जो आप हमारे यहाँ से टेस्ट करा सकते हैं। रिकवरी रेट 79.27% है। तो ओवरऑल हमारे ओवरऑल जो लेके हम लोगों ने काफी कुछ किया है, उसका मैं समझता हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट भी है। जनता को सोशल सिक्योरिटी में हमने पेंशन भी काम में 6 महीने के लिए हम लोगों ने से उनके लिए व्यवस्था करी कि 30 लाख लोगों को 3 किस्तों में 3,500 के लिए केवल फ्री दिए हैं, दालें फ्री दे रहे हैं। परंतु स्थिति जो बड़ी हुई है उसको लेकर हमें चिंता होती है कि आने वाले वक्त में अगर भारत सरकार ने टाइमली कदम नहीं उठाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि अभी तक हमने इतना अच्छा काम किया है, पब्लिक में जाते हुए सब प्रयास दानदाताओं के सहयोग से, बाबाओं के सहयोग से, सोसाइटी आ गया है, एक्टिविस्ट आ गया है, कुछ कमी नहीं रखी। लोगों ने करोड़ों सरकार हमारी कुछ कर रही है। तो जिस प्रकार के हालात बना रहे हैं, तो मेरे मानने की पहले भी आपने एक बार आकाश का पढ़ा था, तो आप हमेशा भी मुख्यमंत्री को लेकर गई थी प्राइवेट के पास में, 5 मिनट प्राइवेट है। उस वक्त मैंने देखा कि बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था, काफी भी हम लोगों को स्वागत करी थी। वक्त आ गया कि मैं करता हूँ कितने है हम सब आपके हाथ चले, प्राइवेट से मिले, अपनी बात में राष्ट्रपति से मिले, हमें इश्यू बनाना पड़ेगा। इश्यू बनाए बगैर मैं समझता हूँ मैंने भी ध्यान देने वाले नहीं। स्थिति बड़ी विकट स्थिति में बोल रहे हैं, उससे ज्यादा विकट स्थिति है। उसकी बातें मैंने उन वक्ता बोल चुके हैं, उन बातों पर आपका रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि आम जनता दुखी है,
सुविधा तो नहीं करेगी राज्यों को भी और पब्लिक को भी, ऐसा नहीं लाएंगे जेल के अंदर अच्छी पावनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी ठीक होगा ही नहीं। और ये बात समझ में आ रही है, मैं समझता हूँ पता नहीं कितनी आ रही है, सारे इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं सबको मालूम है, ये हमारे बच्चों का कहना था। तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी ये एग्जाम के मार्क्स के ना इच्छी है, जब खुद एग्जाम का आ रहा था नहीं का भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में और जगह को कोई आदत नहीं। जब आम राय नौकरी है कि गवर्नमेंट जब कुछ है सुप्रीम कोर्ट में और रिव्यू करने लगा है तो कोई रास्ता निकाल इसलिए कि ये जो प्रॉब्लम आई है वो बदल सके। बाकी जो आपने पत्र लिखा है पर्यावरण को लेकर के उसके ऊपर हम लोग हमने भारत सरकार में जो डाला भी है और चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, वरना आने वाली स्थिति हो सकती है। इस तरह की स्थिति जो एकदम फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर है और उसकी धज्जियां बढ़ रही है, जिस प्रकार के सरकार का निर्णय है सबके साथ में वो उचित नहीं निकाल सकता। लोगों के लिए अगर बड़ी पानी का सुनी पड़ती है, सबकी बात सुनी पड़ती है, तो ये सरकार जो है उसको कोई अपने एजेंडा लाने से इसका है उससे मतलब है पूरे करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो चिंता अच्छी होनी चाहिए सरकार को, राज्यों की स्थिति क्या बनी उसको देखते हुए और देखते हुए उसको चिंता नहीं है। तो ये बात मतलब बहुत ही चैलेंजिंग बात हो गई है। तो चाहूंगा कि सब विधायक बने और लोग जाकर के बात करें और दूसरी बात बताएं कि स्थिति ये बनेगी आपने क्या कहते हैं सबके सामने खाली बच्चों को बात कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। स्थिति यदि बिगड़ ही जाएगी तो सोच नहीं सकता ये स्थिति है। इसमें आपको शुक्रिया करूंगा, आपने अच्छा किया, हम सब कोई सामने आए बातचीत करी। मेरा मानना है कि आने वाले धन्यवाद। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय चोपड़ा साहब, गहलोत साहब, ठाकरे जी, सोरेन साहब, बहुत सही समय में आपने ये बैठक की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और लगातार ये समस्याओं को पार्टी उठाती भी रही है और आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में इस मुद्दे को आपने उठाया। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक जीएसटी का मामला है, हम लोग उत्पादक राज्य हैं और इस कारण से 2022 तक हम लोग कंपनसेशन देने की बात रही गई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से किसी भी राज्य को कंपनसेशन की कोई एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। जबकि आवश्यकता अभी जो स्थिति है 2022 से बढ़ा के बल्कि 2027 तक ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो उत्पादक राज्य हैं वहां से होना चाहिए। मैं इस मत का हूँ। अभी हम लोगों को जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। मुझे ये जानकारी मिली है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी बैठक ले रहे हैं, लेकिन एजेंडा कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो सर्वेक्षण की आ रही है वो बहुत ही डरावना है। वो इस मामले में कि यदि 4 महीने से पैसा नहीं दिए हैं और यदि कल एक फैसला ले लिया जाता है कि जो कंपनसेशन की राशि उसको नहीं दी जाएगी तो उत्पादक राज्यों की हालत और बहुत खराब हो सकती है। दूसरा जो इशू है जिसके बारे में सोरेन जी ने जो बातें कही कि जो पर्यावरण के संदर्भ में, तो ये तो बहुत भयावह है कि यदि कोई उद्योग लग जाए और उसके बाद वो सारे कानून का नियम का पालन करेंगे। मुझे घटना याद आ रही है, जमुना किनारे एक मंदिर बना था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि कानून के हिसाब से गलत बना है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपये 150-200 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है, तो इसलिए इसको
हटाया जाना तो ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार से बात आएगी यदि जो कानून बना है, पैसा कानून बना है, पर्यावरण कानून बना है और उसको पालन किए बिना यदि उद्योग लग जाए और लगने के बाद यदि वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो आखिर में फिर हम न्यायालय में जाएंगे, कहा जाएगा कि भाई सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च हो गया, लग गया है और जो हटाएगा ना राखी क्षति होगी। तो ये जो कानून आया है वो बिल्कुल ही गलत है और जो EIA जो ड्राफ्ट है उसका हम लोगों को बड़ा विरोध करना चाहिए। दूसरा जो कृषि के मामले में जो मंडी का जो मुद्दा है, जैसे कैप्टन साहब ने विरोध किया था और हम लोग भी भारत सरकार को पत्र लिखे हैं कि यदि इसको कोई भी मंडी में कहीं भी जाके बेचा जा सकता है और राज्यों को मंडी से लेने का अधिकार छीन जाएगा तो राज्यों को जहाँ राजस्व की कमी होगी वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 80% जो कृषक हैं वो मार्जिनल फार्मर है और वो कहीं पंजाब में जाके या राजस्थान में या महाराष्ट्र में बेचने जाएंगे नहीं, उसको कहीं से मंडी में बेचना है तो उसका लाभ केवल व्यापारियों को, बिचौलियों को होगा, छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए उसके मैं आवश्यकता नहीं समझता, उसको वापस लिया जाना चाहिए। तीसरा जो शिक्षा नीति के बारे में सभी लोगों ने बात कही है, परीक्षा के मामले में तत्कालीन मुद्दे के सभी मुख्यमंत्रियों ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूँ, चाहे वो राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े या फिर कोर्ट जाना पड़े, लेकिन वहां तो जाना चाहिए। लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो शिक्षा नीति जो लाए हैं उसमें हम लोगों को विचार करना चाहिए। जो शिक्षा नीति लाए हैं निश्चित रूप से ये राज्यों के बहुत ही घातक, क्योंकि जो नीति लाए हैं उसमें पहले कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी का था, उसके पहले 2 क्लास और 3 क्लास और जोड़ दिए हैं, जो आंगनबाड़ी उसको भी कर दिए हैं। तो ऐसे में वो आंगनबाड़ी को एक क्लास उसमें आप जोड़ देते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर शिक्षकों की भर्ती मान 30,000 हमारे आंगनबाड़ी है तो 30,000 शिक्षकों की भर्ती भी करनी पड़ेगी और इस मामले में भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। उसके स्कूल बिल्डिंग कैसे बनेगा, फिर वो क्लस्टर मिल करने की बात कर रहे हैं तो हमारे जो आदिवासी अंचल है बहुत दूर दूर में है और उसके वैसे भी ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो नीति है ये बहुत ही भ्रामक है और पूरा स्टेबलाइज करने की बात कही जा रही है। तो फिर जो हम अपने प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहते, शिक्षा में जोड़ना चाहते तो अपने प्रदेश में जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो नीति जो बना है उसको विरोध किया जाना चाहिए। और फिर एक बात और कही जाती है, जैसे अब अभी हमारे यहाँ जो 8 सब्जेक्ट की है कुछ 20 डिग्री मिलती है, जो साइंस है वो BSc डिग्री मिलती है, लेकिन भारत सरकार अब जो नीति लाई है उसमें ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं। अभी की स्थिति ये है कि हम अपने स्कूलों में कॉलेजों में जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उसे बहुत मुश्किल से भर पाए हैं। सुदूर अंचलों में तो वो उन विषयों के टीचर भी नहीं मिल पाते। ऐसे में जब अलग अलग सब्जेक्ट के एक साथ कोई भी जो स्टूडेंट है यदि वो अलग अलग विषयों को ले लेंगे, साइंस के भी और आर्ट के भी और कॉमर्स के भी, तो फिर इतने सारे शिक्षकों की भर्ती करना, उसको उपलब्ध कराना, ये तो और वो बहुत ही खर्चीला होगा। लेकिन भारत सरकार इसमें वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार होगी इसके बारे में मौन है, जो इस विषय में भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अभी सोरेन साहब ने बोर्ड ब्लॉक के बारे में जो बात कही है और पूरे देश में जो स्थिति है वो प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो रेल का हो, चाहे सेल का हो, जितने भी इंडस्ट्री है सबका निजीकरण कर रहे हैं। तो आज जो स्थिति बनी है, जो 70 साल में हमारी सरकारों ने जो विभिन्न संस्थान सार्वजनिक उपक्रम बनाए हैं उसको लगातार बेचते जा रहे हैं। तो अब जो आवश्यकता है वो इंडिया अगेंस्ट
प्राइवेटाइजेशन, इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है उसे बेचा जा रहा है और एक एक करके बेचते जा रहे हैं। और हम राज्य के लोग चुपचाप बैठे देखते रहे और कहीं कहीं विरोध हो रहा है, केरल के विधानसभा में पारित हो रहा है, कहीं और विधानसभा में पारित हो रहा है। तो इसे हम लोगों को सामूहिक रूप से लड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में पिछले समय जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब हमारे यहाँ बालकों को बेच दिया गया, एल्यूमिनियम प्लांट था। अभी जो नगर नाग में जो स्टील प्लांट बना ही नहीं है उसे बेचने की सूची में उसे जारी कर दिया गया, उसमें रखा गया है। हम लोगों ने इसे विरोध पत्र लिखा है, जैसे निजी हाथों में न बेचा जाए, लेकिन यदि ये बेचा जाता है तो हम लोग विरोध करें, क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी राज्यों के बिकने के कगार पे बहुत सारे राज्यों में निजी हाथों में चला गया, बहुत सारे राज्यों में जाने वाले हैं। तो ये जो इंडिया में प्राइवेटाइजेशन है इसको हमको लेके लड़ना चाहिए। हमारे कोर्ट पिलानी पिछले जो कोर्ट मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य में कोयला का खदान है और हमारे पास भी एक कोयला खदान नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। तो वो बोलते हैं कि जो नीलामी होगी उसमें आप भी ले लीजिए, तो वो हमारे खदान है हम ही खरीदे। ये बात अद्वितीय है, ऐसे बना तो ये पूरे जंगलों को उजाड़ के भी इस प्रकार से किया जाएगा और निजी हाथों में बेचा जाएगा। उनका कहना है कि 50 साल में कोयले रेलवे में नहीं आ जाएगा, तब तक के दूसरे कुछ चीजें आ जाएगी। लेकिन आज जैसे हम भले राकेट के युग में आ गए हैं, लेकिन बैलगाड़ी समाप्त तो नहीं हुआ। यदि हम कितना भी दूसरे पावर के लिए दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन कोयला आधारित जो पावर है उसकी महत्ता कभी कम होने वाली नहीं है, उसकी उपयोगिता बनी रहेगी। तो इस समय हम लोगों को इस मामले में लड़ाई पड़ेगी। उनको लगता है बाकी सब लोग मुल्क में वही एक समझदार है। यही है पावर है सर, जापान में जितने ये सब पावर बनते हैं वो सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, मालूम है? ऐसा नहीं है। ये लोग बेवकूफ बना करके चोरी कर मतलब डकैती काटने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब सारी चीजें हैं जो जीएसटी के मामले में मैं फिर से कहूंगा कि यदि आप नहीं दे सकते तो राज्यों को फिर से वो अधिकार देना चाहिए। जो औद्योगिक जो हमारा उत्पादक राज्य है उसे कम से कम जो उत्पादन के जो पॉइंट है उसमें हमको टैक्स लगाने की अनुमति मिलना चाहिए। कि भारत सरकार नहीं कर सकती तो वो अधिकार हम लोगों को दिया जाना चाहिए। अभी प्रजातांत्रिक मूल्यों की जहां तक बात है, सभी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री जितने भी आईटी है, सीबीआई है, ईडी है, इसका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको महसूस कर रहे हैं इस दबाव को। लेकिन इस मामले इस लड़ाई में अशोक गहलोत जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि 1 महीने के लंबे समय तक के वो लड़ाई लड़े भी और सफल भी हुए और उन्हें टक्करी देने में सफलता मिली। इस कारण से मैं अशोक जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनकी सूझबूझ को बधाई देता हूँ कि वो जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में कर्नाटक में सफल हुए लेकिन राजस्थान में वो परास्त हुए हैं। तो वो जो अवैधानिक कृत्य कर रहे थे उसको रोकने में उसके अशोक जी को सफलता मिली, उनके साथियों को सफलता मिली, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि बहुत सारे विषय आ चुके हैं। बघेल सर, निवेदन है आपका, उस पर क्या राय है कि नया टैक्सेशन सिस्टम लाए हैं फेयरलेस और ये जो नए अभी कर परसों उन्होंने घोषणा किया है कि अब जो टैक्स कलेक्शन वाला सिस्टम जो नए तरीके से ये लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। कल इसमें तो चर्चा होगी ना, कल तो बुलाए जीएसटी मिनिस्टर को। हाँ, उसमें कल स्पष्ट होगा। इनका कहना है कि अब कंप्यूटर के द्वारा लोगों का ऑफिसर लोगों का चयन होगा। अरे ये तो ह्यूमन बीइंग ऑपरेटेड सिस्टम
सिस्टम है, उसमें कभी बड़े लोगों का नाम ही नहीं आएगा, सारे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे व्यापारी लोग उसमें फंसेंगे। और इनका बड़ा स्ट्रेटेजिकली है कि अपने बड़े बड़े सहयोगियों को बैंकों का फायदा और टैक्सेशन का चोरी कराने का एक रास्ता ही वो तैयार कर रहे हैं। देखिए, जो बैंक इंदिरा जी के समय में आम जनता के हो गया है, अब वो बैंक धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बैंकों में डकैतियां भी हो रही है और बैंक है वो केवल बड़े लोगों के लिए रह जाएगा, ये स्थिति है। तो इसमें तो हम सबको, गरीबों को तो कोई लोन हमारे यहाँ बैंक वो भी बंद हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे इशू हैं, आर्थिक जो मुद्दे हैं उसकी तरफ से ध्यान हटाने की पुरजोर कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है। और हम लोगों को आर्थिक मुद्दों को लेकर, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, इन सबके मुद्दों पर व्यापक रूप से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाते हुए हम लोगों को काम करने होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मैडम, आपने समय दिया और सुझाव दिए, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। Honorable Congress President, Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Uddhav Thackeray ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Punjab, Shri Dr. Amrinder Singh ji, Honorable Chief Minister Chhattisgarh, Bhupesh Baghel ji, Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, I wholeheartedly welcome you all. I heard all your speeches. I am very happy that the Honorable Congress President called the like-minded Chief Ministers, Congress Chief Ministers and like-minded Chief Minister. First of all, I would like to say that the initial remark that has been made by Honorable Chief Minister of West Bengal is a very serious issue. It is a KDE exam. We are at a different footing when our Honorable Chief Minister of West Bengal came to Chennai. The issue was also raised to her. The NEET exam, which has been proposed by the Government of India, has been opposed by our government and also DMK party. The reason is that we are conducting the exam in the state board. The Government of India conducting NEET exam on the basis of CBSE. Our poor children belonging to the villages, scheduled castes, scheduled tribe, OBC children who are studying in government schools, then on the basis of the mark obtained in 12th class, the scheduled tribe people were getting medical classes, engineering courses. Scheduled caste children were getting, rural people were getting. Today, when madam, the NEET exam came, the rural people have been eliminated. The people who studied in the state board are eliminated. The children belonging to the richer class who studied CBSE, they are getting elected. Madam knows pretty well. More than 7 children committed suicide in Tamil Nadu. When the board exam was announced, NEET exam was announced, for the last 3 years, 7 children committed suicide, failing that they did not pass the exam. After the exam they failed, they committed suicide. Therefore, our Congress government in Puducherry and also the DMK party took a stand that NEET exam is to be scrapped, and we wanted on the basis of the mark obtained in the 12th class, the children should be admitted in the medical course and also in the engineering course and other professional courses. Why NEET exam should be conducted? The basic question is that. Therefore, madam, I join with all the honorable chief ministers of the Congress group states and other supporting group states
increasing COVID cases in the country. Lot of children will be affected, and some of them will be severely affected. Who is responsible? But the government of India is responsible for it. Therefore, the government of India should review it. I wrote a letter to Honorable Prime Minister yesterday. I told him that postpone GE examination as far as our state is concerned, cancel NEET examination. But madam, I will join with them. We will go to the court. I agree with the Honorable Chief Minister West Bengal. We will jointly fight the battle against the central government on this issue. Madam, during this COVID situation, ours is a small state, but our revenue has dropped. In the month of March, we got nearly 30% of it. In the month of April, it was 45%. In the month of June, it was 55%. In July, it is 60%. 40% revenue shortfall in there. Madam, I am a member of the GST Council. I attended so far right from Arun Jaitley today, Madam Nirmala Sitharaman, about 33 meetings I attended as the Finance Minister of the state. I raised several issues along with the Honorable Chief Minister of Punjab, Honorable Finance Minister of Punjab, Honorable Finance Minister of Rajasthan, and also Honorable Finance Minister of West Bengal. We jointly raised several issues. But it was a solemn commitment given by the government of India. In the bill, in the GST bill, that the government of India will compensate for 5 years all the states the loss of revenue incurred to those states. Madam, if we are allowed to freely tax our people, we know how to raise the resources, how to raise the revenue. But that power has been taken over by the government. Though it was brought by our government, it was one tax, we wanted that one tax, and for the people in a simple way. But they totally messed up, and they said 0%, 5%, 12%, 24%, then 32%, and 54%. By doing this, the government of India is getting revenue, and the state is not given due compensation. Then how can Madam the Attorney General give an opinion when it was a solemn commitment given by the government of India in the Parliament and also to the states in the GST Council that 14% compensation will be given to all the states and bi-monthly, irrespective of the fact whether the government of India gets sufficient revenue or not. Now they are taking the plea. In fact, in the last meeting in the virtual conference, I raised the issue with the Nirmala Sitharaman. Madam, I told her, this is a commitment given by you. How can we go against it? When the government of India is violating its own policy, principles, and the law, how can we expect the state government to do that? But unfortunately, Madam, she said we will go for a market borrowing. I told her, when you go for a market borrowing, or you get it from Reserve Bank of India, it is your baby. But you have to give us the compensation. For the last 4 months, all the, including BJP ruled states, they are all raising the voice. But so far, no reply coming from the government of India for that. And unfortunately, the Finance Secretary goes to the Standing Council, Finance Ministry Standing Council, and he says that we have no money. That means that the government of India has become bankrupt. When they say they will not have money, it's like a shame on the part of the government of India. Government of India can say that. Government of India has to play, whereas Madam, I am one of the state who is fighting against the government of India. And also Lieutenant Governor. The same is the case with Madam Mamata Banerjee. She is fighting against the government of India and also governor every day. But can you imagine, Madam, in our state, Puducherry, the Lieutenant Governor said she will come and address the house when I called the assembly session. She gave approval. She did not come, but I read the budget. I didn't bother about it. After 10 days, she came to the house and addressed the house. Therefore, we are fighting battle every day against these people. But we don't bother. Whether we remain in power or not, we will uphold democracy. We will uphold values. The cooperative federalism which Narendra Modi is telling every day, Prime Minister, cooperative federalism is educated. He is trying to impose everything on the states. The ease of it all you want
Anand Soran said, some of the, even the Honorable Chief Minister West Bengal said, the Prime Minister's health scheme, they are giving only 40%, we give 60%. They say it has to be Prime Minister's scheme. Money is our, direct total money is our government money. But they want to take the name for themselves. Madam, 7th Pay Commission arrears. For the last 2 years, we are paying to our state government, announced by the government of India people. No compensation was not given to us. Puducherry, madam, we wanted us to be included in the 15th Parliament Commission. We are at the assembly. Delhi is also assembly. All the states are getting now 51% share in the revenue. But Puducherry is getting only 26% revenue. But they are collecting more than 6,000 crores. If 50% of the money comes to 3,000 crores, they are giving us only 1,700 crores. That is how they are cheating our governments. They are not paying our due share. They say but the Delhi government they are treating them separately. We are treating them separately, even within the union territories. Therefore, madam, the GST compensation for tomorrow the meeting I will attend. I will forcefully say that either you pay any compensation within a period of 15 days. Otherwise, you leave us, we can go for our own pattern of taxing the people. We know how to raise our resources. We don't want to come with you before a breaking bound. We will tell them, like that. Because why do our money they take, madam? And they are not giving us the money. Therefore, madam, it is very clear from our side. The other issue which has been raised, it's a very important issue. The privatization of Islam. They wanted to give it to Adani. It's a very clear-cut issue. We have got the infrastructure for privatization of the power sector. We are guaranteed. If you don't do it, we will not give it a grant. They are putting condition on us. Who are going to put condition on us? We have got an infrastructure of about 20,000-30,000 crores for power distribution system in our state. Our state government is running it. They want to take it over by indirect method in the name of privatization. The environment impact assessment, they are reducing time frame. Public hearing, they would like to go against it. New education policy, wherever our leader, Sri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, Parliament debated on the new education policy. And thereafter it was approved by the Parliament. Today, they are not the more extensive consultations. They are going to state. Before Yes. the policy was Deliberated at all levels, including the education and the people who are in the education field, all that thought and discussed. Today, they announced, state they said they are going to implement. But southern states are opposing it, including that, madam, during the COVID situation in other states, in April, there are only 3 cases. Today, there are become 11,000 cases. About 9,000 people have been recovered and bring home. Because the death rate is only 1.4%. The recovery rate is more than 75%. I issued so far, madam, 5 video conferences I attended with the Prime Minister. In 3 video conferences I spoke. The Prime Minister said, he said you have to control COVID. I told him give us money. There is a money to the states. He said he never answered that issue. He never answered to us at all. And now, madam, so far, we spent more than 200 crores for controlling COVID in our state, in a small state. The government of India gave us 23 crores. Disaster Management Fund, it is not COVID money. Ajani State of Tamil Nadu, the supporting party, they got more than 30,000 crores. The population is more, I agree. I am not saying that Tamil Nadu should not be, Tamil Nadu should get, but we should get our due share. Our people are also Indian. We are not come from France. We better this kind of the spectacular attitude of the central government in ignoring our states, the Congress of the state, and trying to topple the Congress governments. But every day we have to fight the battle against them, imposing officers on us, imposing their policy on us, even if it is a state subject interfering in that. Therefore, every state now, this is a time, madam, as I entirely agree with the Honorable Chief Minister of West Bengal, we should go to the court and then try to see that the NEET exam and also the JEE exam to be postponed. And secondly,
good. Well, I think I must thank you all for participating in this video call, but particularly because we take a very short notice. From what I hear from all of you, it is quite clear that unless we make an issue of the problems facing the state and therefore the people, government is not going to take any notice of our individual pleas or our letters or your letters. And therefore, as Dr. Thakurji has said and all of you have said, we have to fight together against injustice meted upon the states and the people like this government. As far as going to the Supreme Court, I gather that all of you are agreeable. Yeah, Yes, we are agreed, yes. we are agree. Mankaji, Yes, we all. Mankaji, maybe you can also coordinate or get in touch with other chief ministers. We of course will do it with our own, but if you can. Okay, I can talk to other chief minister also. Yes, yes, So that yes. we are all together, and it would be much more effective. Let me try, yes. So finally, thank all once again. I also feel that we should meet more often, as chief ministers, of course, leaders of like-minded parties, but chief ministers more 2-3 times in a year or even more so, because it's becoming very important now to stick together and fight together. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Okay.